एक बार फिर से आप लोग का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। वेलकम टू माय YouTube चैनल कैफवेब, माई सेल्फ कौशिक पाल। नाउ I am going to in the further lecture, that is the block diagram reduction. So there are basic some rules and we have to follow for getting the reduction in the block diagram. Actually, when we perform in the control system equipment by obtaining a controller circuit, so there we need some different types of blocks. But when we conclude the transfer function, then we should have to minimize the blocks in one equivalent block diagram. So that's why we need block diagram reduction. So there are some basic rules that we have to follow. तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या बेसिक रूल्स हैं. The first one, that is the associative law. Suppose R1 of S, R2 of S represents, जनरली क्या होता है कि हम लोग कोई भी फंक्शन, कोई भी इक्वेशन को दो तरीके से लिख सकते हैं. एक तो टाइम डोमेन में, एक या एस डोमेन में. एस डोमेन क्यों लेते हैं? बिकॉज लैपलेस ट्रांसफॉर्म हम लोग यूज करते हैं. दैट्स व्हाई द टोटल इनपुट शुड बी कन्वर्टेड इनटू द एस डोमेन, दैट इज इन द लैपलेस फॉर्म. सो आर सपोज दैट वन इनपुट R1 ऑफ एस एंड R2 ऑफ, ये आपका क्या है? समर सर्किट है. सो समर सर्किट में यहां पर प्लस है, माइनस है. सपोज कर लेते हैं कि यहां पर हम लोग R1 प्लस R2 को इनपुट करना है एंड इक्विवेलेंट, दैट इज द आउटपुट, इट्स आउटपुट विल बी R1 ऑफ S माइनस R2 ऑफ S, प्लस माइनस. ओके, नाउ अनदर वन, और एक इनपुट R3 ऑफ S हम लोग यहां पर ऐड कर रहे हैं. सो इट इज also in the plus form, it is also in the plus form. So equivalent R of S, suppose that this its equivalent output is named as a C of S, and C of S we can write here. So last one, that is equal to R1 of S minus R2 of S plus R3 of S. तो हम लोगों ने कंट्रोल सिस्टम में पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और यहां पर क्या होते हैं कि इनपुट्स को हम लोग एडिटिव कर सकते हैं जिस तरह के, जिस फॉर्मेट में. जैसे यहां पर माइनस था तो माइनस, अगर यहां पर इसमें इंटर अगर प्लस कर रहा है तो प्लस में करेंगे. बस यही हम लोग इसमें किए हैं. सेकेंड है, इफ द ब्लॉक्स आर कनेक्टेड इन ए सीरीज फॉर्म लाइक दिस, इन दिस वे, G1S of G, that is in the cascade form. So what will be the equivalent block? So equivalent block can be written is in this form. Suppose R of S is the input and here is the equivalent G equivalent of S, and here is the output C of S. So G equivalent, दोनों दो है ब्लॉक, दो तीन चार ब्लॉक हो सकते हैं. उसके बदले में हमको एक इक्विवेलेंट ब्लॉक उसमें कन्वर्ट करना होगा, ब्लॉक्स की संख्या को कम करना, मिनिमाइज करना होगा. सो द वैल्यू ऑफ द G इक्विवेलेंट इज नथिंग बट द ओनली द multiplication of the blocks. So here is the CS is equal to G1 of S into G2 of S into R of S, isn't it? C of S is equal to R of S, G1S into G2 of S. So this is the multiplication process. Now when the blocks are in the parallel form, that means blocks are arranged in the parallel form, so what will happen? Suppose that this one is the input R of S and it has a branches, that means
it has some branches, and that means here is the R of S, same amount of input is applied into the different blocks. That means the same input is applied in the different. लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था, G2 में आपका R of S नहीं लिख रहा, यहाँ पर अब यूज हो रहा था जैसे, सो यहाँ पर आपका यूज हो रहा था R of S into G1 of S. इस ब्लॉक के लिए इनपुट क्या था, R of S into G1 S, but in this format, in the parallel format, so the same input is applied into the different boxes. और हम लोगों ने assume किया कि यहाँ पर एक प्लस में इंटर कर रहा है, दिस वन इज द समर सर्किट, प्लस यहाँ पर माइनस में इंटर कर रहा है और एक प्लस में इंटर कर रहा है. तो फाइनली C of S, that suppose that this output is named as a C of S, so what will be the C of S? So it will be C of S is equal to, simply हम लोग इसको ऐड करेंगे, क्या करेंगे, G1 of S minus G2 of S plus G3 of S. So we can write here G1 of S minus G2 of S plus G3 of S, and whole is multiplied with R of S. Okay, so this is the, for cascaded we have to multiply, and for the parallel connection we have to add some algebraic add, that is not addition, only algebraic add. That means when the plus sign is formed, the plus minus sign अगर form होगा तो minus को add करेंगे, like इस तरह से हम लोग इसको करते हैं. Okay, next we are moving. If summing point is moved, ऐसा जरूरत पड़े कि समिंग पॉइंट को मूव करना पड़े. सो दो केस लिए, समिंग, शिफ्टिंग ए समिंग पॉइंट आफ्टर ए ब्लॉक, तो क्या हो जाएगा इसको हम लोग देखते हैं. सो इट्स इक्विवेलेंट, दैट मींस ये क्या कहना चाह रहे हैं कि इस समिंग पॉइंट को हम इधर ले आना चाह रहे हैं. ओके, तो इसका इक्विवेलेंट ब्लॉक क्या हो जाएगा, सो इट विल बी R of S. Okay, here is the G of S, and now this one is the summing point, but there is some change. Here is the X of S into G of S. Now this one is the, okay, क्या कर रहे हैं कि समिंग पॉइंट को अगर इधर ले आते हैं तो नाउ दिस वैल्यू इज नाउ चेंज्ड and X of S into G of S multiplication is added. इसको देख लेते हैं कैसे प्रूफ हो रहा है. तो देखिए इसका हम लोग C of S निकालते हैं. So what will be the C of S? C of S is equal to, क्या हो जाएगा, R of S plus X of S, R of S plus X of S, and that should be multiplied with G of S. It is nothing but this is the value of C of S. और इस केस में हम लोग देखते हैं कि क्या वैल्यू होगा. यहाँ पर सपोज करिए प्लस प्लस ही है, सो इट विल बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C of S? सो इट इज नथिंग बट द दिस वन RS into GS, R of S into G of S plus X of S into G of S. So this is the very equivalent. क्या कर रहे हैं कि समिंग पॉइंट को अगर आफ्टर ले आते हैं तो जिस ब्रांच, उस ब्रांच में जिस ब्लॉक से होकर पास करके ले जा रहे हैं, जिस ब्लॉक से, यानी G of S, that block should be multiplied, that block should be multiplied. इसको हम लोग SAM के नाम से भी कहते हैं. This one is called the SAM, summing point after, this one is for after, then what will be that effect, that should be multiplied, summing point after multiplication. एक जस्ट इसको याद रखिए. अब देखते हैं दूसरा है शिफ्टिंग ए समिंग पॉइंट बिफोर ए ब्लॉक. इसका मतलब है समिंग पॉइंट को आप बिफोर ले आना चाह रहे हैं. सो व्हाट विल बी द इफेक्ट, जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा. तो इसका मतलब है R of S, समिंग पॉइंट को इधर ले आ रहे हैं, G of S, and here is the C of S. Then इसके ब्रांच में क्या हो जाएगा, X of S तो रहेगा ही, साथ साथ में
जिस ब्लॉक से होकर पास कर रहे हैं, सो दैट शुड बी द डिवीजन, सो दैट इज इक्वल टू जी ऑफ एस, एक्स ऑफ एस बाई जी। यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, समिंग पॉइंट बिफोर डिवीजन, समिंग पॉइंट आफ्टर मल्टीप्लीकेशन, समिंग पॉइंट बिफोर डिवीजन। बस इस चीज को याद रखना होगा। नाउ नेक्स्ट वी आर मूविंग शिफ्टिंग ए टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर ए ब्लॉक। ठीक है, सो व्हाट इज टेक ऑफ पॉइंट? एट फर्स्ट वी हैव टू नो व्हाट इज टेक ऑफ पॉइंट। सो दिस ब्रांच, दिस इज वन इज द टेक ऑफ पॉइंट, यानी अगर इसमें से जो ब्रांच निकल जाए तो दिस नोड और इससे जो ब्रांच है, दिस इज कॉल्ड द टेक ऑफ पॉइंट, दिस वन इज कॉल्ड द टेक ऑफ पॉइंट। तो इसमें क्या है, टेक ऑफ पॉइंट को आफ्टर ए ब्लॉक में शिफ्ट करना है, यानी आपको यहां पर शिफ्ट करना है। चलिए शिफ्ट करके देखते हैं। सो व्हाट विल बी द इफेक्ट? सो आर ऑफ एस, ओके, अब यहां पर जी ऑफ एस रहेगा और इस जगह पर टेक ऑफ पॉइंट पहुंच गया, यहां पर सी ऑफ एस है और इस जगह एक्स ऑफ एस के साथ क्या चेंजिंग होगा देख लेते हैं। सो इट विल बी चेंज्ड एज ए जी ऑफ एस, डिवीजन होगा। चेक कर लेते हैं एक बार। आर ऑफ एस, यहां पर देखिए एक्स ऑफ एस का वैल्यू कितना होगा, इट इज नथिंग बट द आर ऑफ एस, वी कैन राइट है क्योंकि एक इधर चला जा रहा है और इसी का एक पार्ट एक्स ऑफ एस, सो एक्स ऑफ एस इज नथिंग बट द ओनली आर ऑफ एस। यहां पर देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। सो इस जगह देख लेते हैं कि यहां पर आपका क्या इंटर कर रहा है। सो इट इज इक्वल टू एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू, इसको इस तरह से लिखते हैं, यानी 1 बाय जी एस कर देते हैं, 1 बाय जी ऑफ एस एंड दैट इज इक्वल टू एक्स ऑफ एस। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ एस? इट इज नथिंग बट द, इसमें इंटर कितना कर रहा है, देखिए इसमें जा रहा है आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस, आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस, और इसमें से इंटर करने के बाद जी ऑफ एस से फिर डिवीजन हो रहा है। सो द सेम विल बी देन। याद रखने का तरीका क्या है, जैसे याद रखे थे सैम, समिंग पॉइंट आफ्टर मल्टीप्लीकेशन, जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिए। क्या था उससे पहले, था क्या, समिंग पॉइंट आफ्टर मल्टीप्लीकेशन, यहां पर भी आफ्टर है तो क्या हो जाएगा, टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर डिवीजन, टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर डिवीजन। ठीक, उसी तरह से यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर था एस बी डी था, इसका मतलब हो जाएगा टेक ऑफ पॉइंट बिफोर मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए। आप चेक करके देख सकते हैं, यानी इस टेक ऑफ पॉइंट को अगर यहां पर ले आए तो क्या हो जाएगा, बिफोर अ ब्लॉक ले आए तो उस जगह पर हो जाएगा क्या, सो दैट इज इक्वल टू आर ऑफ एस, ओके। सो दिस वन टेक ऑफ पॉइंट यहां पर चला जाएगा, जी ऑफ एस एंड दैट इज इक्वल टू सी ऑफ एस, और इस जगह हम लोग क्या करेंगे, एक ब्लॉक और मल्टीप्लीकेशन करेंगे जी ऑफ एस एंड दैट इज इक्वल टू एक्स ऑफ एस, ओके। तो ये चीज है, मोटा मोटी आप याद रखिए। अगर सैम, जैसे हम लोग कहते हैं कि दोनों ही इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट को हम लोग क्या याद रखने का तरीका हम बता रहे हैं, सिर्फ एक याद रखिएगा, दोनों ही इक्विवेलेंट है यानी दोनों ही सेम है, तो सेम का आई सिर्फ कैंसिल आउट करके रख दीजिएगा, बस ये वाला फॉर्मूला रखिएगा, सैम, इससे निकल जाएगा एस बी डी। अगर सैम याद रहेगा तो टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर रहेगा, सिर्फ ये चेंज होता है, टेक ऑफ पॉइंट बिफोर ये चेंज होगा, ओके। सो दिस इज द कंसेप्ट टू मेमोराइज द थिंग। और लास्ट दो बचे हुए हैं, इसको जनरली हम इसको बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आपको याद रखना चाहिए। शिफ्टिंग ए टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर समिंग पॉइंट, टेक ऑफ पॉइंट को समिंग पॉइंट के आफ्टर करना, आफ्टर समिंग पॉइंट करना, दैट मींस वी हैव टू मूव टेक ऑफ पॉइंट इन दिस फॉर्मेट। तो टेक ऑफ पॉइंट देखिए यहां पर आ गया, तो इस तरह का अरेंजमेंट है, ये टेक ऑफ पॉइंट का एक ब्रांच चला गया, the same circuit, same summer circuit and the same branch will be added and another summer circuit is used। यहां पर देखिए मैं इसको इसलिए कर रहा कि इससे बचिए, समिंग पॉइंट और टेक ऑफ पॉइंट को
बिफोर या आफ्टर करने से बचने इसलिए बता रहे हैं बिकॉज यहाँ पर देखिए एक और समर सर्किट यूज हो रहा है। दैट मीन्स हम जहां पर सर्किट को रिड्यूस करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर सर्किट और एक आपका ऐड हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हम इसको प्रोसीड नहीं करते या प्रोसीड होता नहीं है, हमें करना भी पड़ता है, लेकिन जब तक अगर हो इससे बचिए बिकॉज यू हैव टू रिड्यूस द एलिमेंट्स। ठीक उसी तरह से आपको देखिए शिफ्टिंग एट एको पॉइंट बिफोर ए ब्लॉक, सो द बिफोर ए ब्लॉक यहां पर आ गया सी ऑफ एस, अगेन सेम अरेंजमेंट विल बी समर सर्किट विल बी एडेड एंड द ब्रांच एक्स ऑफ एस इज एडेड। तो यही हो गया आपके कुछ रूल्स जिसको हमें फॉलो करना है और हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट प्रॉब्लम में इस तरह के रूल्स को आपको किस तरह से यूज कर सकते हैं। मेनली तीन हमें कोई भी सर्किट को जब इक्विवेलेंट सर्किट में चेंज करना होगा तो तीन सर्किट पर लाना बहुत जरूरी है। पहला है कि आपको किसी तरह से कैस्केड के फॉर्म में लाइए, दूसरा हो सकता है या तो पैरेलल फॉर्म में लाइए या तो फीडबैक लूप यानी एलिमिनेशन के रूप में लाइए। ये तीन फैक्टर पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे। देखते हैं आगे के लेक्चर में कि उस प्रॉब्लम को कैसे हम लोग डील करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।